যে আমাদের প্রেস কনফারেন্সে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা সকলেই জানেন যে 12ই এপ্রিল আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন হয়েছিল এবং আজকে তার ভোট গণনা হয়েছে। আসানসোলে ইতিহাস সৃষ্টি করে 3 লক্ষেরও বেশি ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাজি জয়লাভ করেছেন। এই জয় আসানসোলের মানুষের জয়, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জয় এবং তিনি যে কাজগুলো করেছেন সেই কাজগুলো মানুষের বাড়ি পর্যন্ত যে পৌঁছেছে, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হয়েছেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। তো এই জয় ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে এবং শত্রুঘ্ন সিনহাজি এরপরে বলবেন। কিন্তু আমি খালি একটাই কথা বলবো যে আমাদের নেত্রী একটা আবেদন করেছেন, আমরা আপনাদের মাধ্যমে সেটা বলতে চাই যে আমাদের যত কর্মী সমর্থক বা নেতৃবৃন্দ আছেন, এখন পরীক্ষার সময়, উচ্চ মাধ্যমিকের সময়, তাই এখন কোনো মিছিল মিটিং বা কোনো রকম উৎসবে আমরা মানব না। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন বিধানসভা বা বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী আমরা বিজয় উৎসব করব, কিন্তু পরীক্ষার সময়ে কোনো রকমের কোনো মিছিল বা মিটিং বা কোনো রকমের উৎসব আমরা করছি না। আমরা আবেদন করছি সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকদের কাছে যে আপনারা সংযত থাকুন। যদিও আমরা বিরাট ব্যবধানে জয়লাভ করেছি, মানুষের বিরাট সমর্থন পেয়েছি, সেটা মানুষের যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি, আমরা মানুষকে ধন্যবাদ জানাই, আসানসোলের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের রাজ্যে যে ধরনের উন্নয়ন হয়েছে এবং এই শিল্পাঞ্চলে যে ধরনের উন্নয়ন হয়েছে এবং এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ যেভাবে উপকৃত হয়েছে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, এবং যেভাবে রাজ্য সরকার এই রাজ্যে পরিচালনা করছেন, তাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভোট দিয়েছে। মানুষ আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। তাই আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করছি না। শত্রুঘ্ন সিনহাজি আমাদের প্রার্থী, যিনি জয়লাভ করলেন, আমি অনুরোধ করব তাকে বলার জন্য। দেখুন, ভাষাভাষী হিসাবে ধর্মের ভিত্তিতে বা জাতপাতের ভিত্তিতে তো ভোট হয় না, উন্নয়নের ভিত্তিতে ভোট হয়। এতদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ধাপ্পা দিয়ে কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। মানুষ এখন বুঝে গেছে যে জনতা পার্টি যেগুলো কথা বলে সেটা কোনোটাই সত্য হয় না এবং বিগত দিনে সেটা সত্য হয়নি। তাই মানুষ বিজেপির যে মুখোশের তলায় যে আসল চেহারা, মানুষ সেই চেহারা বিজেপির দেখে নিয়েছে এবং মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। নিশ্চয়ই, তাছাড়া এত ব্যবধান হবে কি? উইথ ইউর কাইন্ড পারমিশন মলে বাবু, যদি আমি বলতে পারি, আপনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি মানে যে কোয়েশ্চেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন মলে বাবুকে, একটু যদি আমি এক্সটেন্ড করতে পারি তাহলে আমি বলবো যে আমি যা হোক পুরো কান্ট্রিতে যা আমার রিকগনিশন হয়েছে, যা আমি করেছি এজ এন আর্টিস্ট আর এজ এ স্টার, হোয়াট এভার গ্রোথ ইউ হ্যাভ সিন, হোয়াট এভার, ও তো আমি জানি কোন দিকে আমাকে দেখতে হবে। 50 ইয়ার্স আমি ক্যামেরার সঙ্গেই খেলেছি, আমার খেলা হলো कैमरा সঙ্গে। আমি জানি जो मेरा ग्रोथ आप लोगों ने देखा है लाइफ में, एज एन एक्टर, एज ए स्टार, एज एन आर्टिस्ट, पूरे देश में विदेश में जो पहचान बनी है वो किसी एक धर्म विशेष की वजह से नहीं बनी है, वो एक प्रांत की वजह से नहीं बनी है, एक जाति और जात की वजह से नहीं बनी है। आज जो भी मान्यता मिली है, जो भी सम्मान मिला है, वो मिला है हर वर्ग से, हर जाति से, हर मजहब से, कटिंग अक्रॉस द बैरियर ऑफ दिस पार्टी और बैरियर ऑफ रिलीजन। तो ये मेरा जो हुआ है उसी के एक्सटेंशन में फर्दर मैं भी कहना चाहूँगा, जो मेले बाबू ने कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती है, कल परसों में गुड फ्राइडे था, अभी रात से शुरू हो जाएगा इमरजेंस ईस्टर का।
उसके पहले आपने देखा कि भारत के संविधान के निर्माता ग्रेट एंड लेट फादर फिगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। आज कल में बंगाली न्यू ईयर हुआ जो बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसके पहले आपसे कह दूं कि रमजान का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के इस पवित्र महीने में साथ ही साथ आपने देखा होगा कि नवरात्रे की कितनी शुभ घड़ी आई सामने, और नवरात्रे में सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल में कितने अच्छे से नवरात्रे और रामनवमी का सब यात्रा संपन्न हुआ, सुख शांति और भाईचारा सद्भावना के साथ। इसके लिए हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोग भी, हमारे दूसरे पार्टीज के लोग भी, और साथ ही साथ यहाँ का प्रशासन है और पुलिस, वो सब उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। सबने बहुत अच्छा किया। लेकिन इन शुभ घड़ियों के बीच में इमरजेंस हुआ, जैसे कि हमारे ग्रेट ईस्टर्न का होता है, ईस्टर्न में होता है। आज आपके यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस 70 साल के इतिहास में पहली बार तृणमूल कांग्रेस का जो आज इमरजेंस हुआ है इस शुभ घड़ी में, वो बेमिसाल है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और वो मिसाल वो इसलिए हुआ है कि हमारे साथ यहाँ पे मैंने हमारे कहा, मैंने मेरे साथ नहीं कहा, हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेतागण, चाहे आप सिन्हा जी का नाम लो, चाहे आप हमारे सबसे आज घने और जबरदस्त आप नरेंद्र बाबू का नाम लो, चाहे आप हरे राम जी का नाम लो, चाहे तपस बाबू का नाम लो, आप ये लोग प्रदीप बाबू का नाम लो, आप हमारे वर्दी सर वर्दी फादर मानिक बाबू के बेटे विधान बाबू का नाम लो, आप अमरनाथ चटर्जी जी का नाम लो, या साथ ही साथ जिनको आप और मैं अब मैजिक मैन कहते हैं और जानते हैं और मैजिक मैन के रूप में मानते हैं, ऐसे मोले घटक जी जिनको हमारा इंचार्ज बनाया गया था और कहा गया था, ममता जी ने खुद कहा था कि आपकी देखभाल करेंगे और गार्डियनशिप होगी, वो होगी मोले घटक जी की, और उनके साथ साथ उनका भाई भी होगा जो बहुत जबरदस्त डैशिंग और डायनेमिक है, रोमांटिक भी है, और वो है अभिजीत बाबू, अभिजीत जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने मिलके, दासूदा तो हमारे शुरू से साथ रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कॉफी पिलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं पिलाया, वो अलग इशू है। कॉफी दासूदा का वो अलग इशू है। तो इन तमाम लोगों ने जो अथक काम किया, जो परिश्रम किया है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि देश की सबसे जानदार, शानदार, दमदार, ग्रेट लेडी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट लीडर ममता बनर्जी का जैसे इसके ऊपर आशीर्वाद रहा, घड़ी घड़ी हर घड़ी पल पल जिस तरह से ममता जी ने निगरानी की है, जिस तरह से उन्होंने सबको डायरेक्शन दिया है, ये गजब का है। मुझे भी ममता जी ने वो जब मेरे बारे में खुद ट्वीट किया और मुझे खुद फ़ोन किया और मुझे निर्देश दिया कि यहाँ आओ, जाओ आसनसोल के तुम्हार वेट করছেন, তোমার এখন না করবার দরকার নেই, তুমি ওখানে স্ট্রেট যাও, ওইখানে ওরা वेट করছে তোমার। আমি এখানে এসে গেছি और यहाँ पे आया था तो हमने कहा था, कंक्लूड करने के पहले बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि ममता जी योर विश इज आवर कमांड। इतना मानती थी मुझे, शुरू से चाहती थी, शुरू से बुलाती थी। कल्याण बनर्जी जी शुरू से कोशिश कर रहे थे, हमेशा चाहते थे, मनाते थे, बुलाते थे। मैं यहाँ आया तो ये लोग जब हमको लेने गए वहाँ पे, तो पहली बार मैंने एक महसूस किया आसनसोल आने के बाद कि हमारा आना जो है एक हिस्टोरिकल था, यानी कि हिस्टोरिक मूवमेंट था। जो रिएक्शन देखा ओवरवेलमिंग पब्लिक का, जो ब्लेसिंग्स देखी, जो आशीर्वाद देखा, जो सपोर्ट देखा, जो लव एंड अफेक्शन देखा और जो एक्सेप्टेंस देखा अपने बारे में, वो मैं कह सकता हूँ कि वो हिस्टेरिकल था। हिस्टोरिक मूवमेंट में आया, हिस्टेरिकल रिएक्शन देखा लोगों का, पॉजिटिव रिएक्शन, हिस्टोरिकल रिएक्शन, हिस्टेरिकल रिएक्शन। तो उसी आधार पे मोले बाबू ने, हम लोगों ने सबने मिलकर कहा कि अब जो चुनाव की घड़ी होगी, जो जीत होगी हमारी मेरी नहीं, हमारी जीत जनता जनार्दन की होगी,
ममता जी की होगी, तृणमूल कांग्रेस की होगी, यहाँ के कार्यकर्ताओं की होगी और आसनसोल के लोगों की होगी। जो जीत होगी आपके साथ साथ, वो उस जीत से भी हम हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे। हालांकि आगे पूरे वर्ल्ड में रोल मॉडल हो गई। बंगाल में विनिंग स्प्री लेके हमने शुरू किया था ममता जी के द्वारा, ममता जी उनकी टीम के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। आज उसकी एक आहुति आपने देखा है हमारे अपने आसनसोल में। आज भी पूर्णाहुति होगी 2024 में, जो पूर्णाहुति होगी। और ये आपने देखा है, ये कम नहीं है कि आसनसोल में चंद रोज के अंदर में, 15-20 रोज के अंदर में इतना बड़ा हम सबों ने मिलके एक इतिहास, एक रिकॉर्ड, एक मार्जिन का ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि जो शायद न पहले हुआ हो, जिसे आप संस्कृत में कह सकते हैं भूतो न भविष्य, ऐसा हुआ। भाजपा से पब्लिक मुंह क्यों फेर लिया, इसका फॉल्ट क्या है? भाजपा का क्या कार्रवाई है इसलिए पब्लिक ने उससे मुंह फेर लिया? भाजपा का फॉल्ट हमसे, अगर इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें आपके सवाल को, तो हमसे कई बार पूछा गया है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था 2 बार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड शिपिंग का कैबिनेट मिनिस्टर था, 4 बार एमपी रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो लोग पूछते हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया उस पार्टी को जिसमें आप इतने साल रहे। तो मेरा हमेशा जवाब होता है कि बाकी 2 जवाब होता है। एक तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व नेता, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और हमारे मित्र, फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, उनके वक्त में तानाशाही शुरू हो गई है। लोकशाही और तानाशाही, एरोगेंस नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकशाही है, यहाँ पे एरोगेंस नहीं चलेगा। इसलिए मैंने छोड़ा वहाँ पे। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तमाम उनके ईवीएम मशीन के खेला करने के बावजूद आज चारों तरफ लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने आज का रिजल्ट देखा है, मोले बाबू ने बताया, नहीं बताया मुझे पता नहीं, आज का रिजल्ट देखा है। 4-5 जगह जो इलेक्शन हुआ है, पूरा बाई इलेक्शन में पूरे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले दिनों में यही होगा और 24 के इलेक्शन में हमारी ममता बनर्जी भी ये करके दिखाएगी। मैजिक मैन मौलाना घोटक के साथ हम सबका मैजिक चलेगा उसमें। आपको बधाई दी है, क्या बोलेंगे? कौन? आपको बधाई उनका, मैं उनका नाम कैसे लूं अपनी जुबान से? मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, मैं इनको कह रहा था कि मैं किसी पर स्त्री का नाम तो ले नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात ये कह रहा था कि किसी व्यक्तिगत, किसी उम्मीदवार से तो कोई दुश्मनी है ही नहीं मेरी। मेरा तो व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ा, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ा, तृणमूल कांग्रेस का साथ लड़ाई लड़ा। तो मेरा उनसे कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे शुभेच्छा दी है तो मैं भी उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हालांकि मुझे 1-2 बार गद्दार वगैरह कहा, उन्होंने शायद गद्दार का मतलब नहीं पता होगा उनको, तो मुझको और गद्दार कह देना, जिसके ऊपर देश में आज तक प्रभु की असीम अनुकंपा, अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद, एक एलिगेशन नहीं है किसी करप्शन का। आज तक एक इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ जिसके ऊपर, एक FIR लॉन्च नहीं हुई जिसके ऊपर, कोई केस नहीं। उसको उन्होंने कह दिया, शायद जोश में कह दिया होगा, स्लिप ऑफ द टंग तो नहीं था क्योंकि एक बार ने 2-3 बार रिपीट किया गद्दार कहा। लेकिन मैं क्षमा करता हूं उनको, लेडी है इसलिए क्षमा करता हूं और क्षमा इसलिए भी करता हूं कि शायद उनको गद्दार मतलब नहीं पता होगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे शुभेच्छा दी है तो मैं इसकी कदर करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं।